آج ویو 360 میں کورونا وائرس سے امریکہ سمیت دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں معیشت کا پہیہ جام. وبا کے کنٹرول کے لیے بعض امریکی ریاستوں کے سخت ترین اقدامات. If we do not act, the price will only be larger, both in humanity as well as economically. عالمی وبا کے اس دور میں روہنگیا پناہ گزین اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ لنڈا بازار جانے کو باعث شرم سمجھتے ہیں؟ آپ کو دکھائیں گے کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی استعمال شدہ اشیاء کے خریدار اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے والے کاروبار موجود ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں اسد اللہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. پروگرام آج بھی ہم بلڈنگ سے نہیں کر پائے کیونکہ مکمل طور پر تقریباً بلڈنگ بند ہے, اسٹوڈیوز مکمل طور پر بند ہیں. جزوی طور پر اس وقت جو سچویشن ہے مختلف بلڈنگز کی کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کا بھی 90% سٹاف جو ہے وہ گھروں سے بیٹھ کر اس وقت تک کام کر رہا ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے اب تک 170 ممالک سے زائد میں اب تک کرونا وائرس جو ہے وہ پھیل چکا ہے. 2 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں. 8000 سے زیادہ اموات اب تک جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں. امریکہ میں اس وقت بیل آؤٹ پیکیج یا اسٹیمولس پیکیج کی بات کی جا رہی ہے. $1 ٹریلین تک کی ڈسکشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ IMF نے بھی اس حوالے سے کچھ بیل آؤٹس جو ہیں وہ اسکیجول کیے ہیں جس میں $1 ٹریلین کی اماؤنٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے. کرونا وائرس سے متعلق چین اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والا سفارتی تنازع بھی اب کھل کے سامنے آیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے اس مبینہ دعوے پر تنقید کی ہے جس میں چین نے کہا تھا کہ امریکی فوج نے چین میں کرونا وائرس پھیلایا ہے. چین نے بھی امریکہ کے صدر کی طرف سے کرونا وائرس کو چینی وائرس قرار دیے جانے پر صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر تنقید کی ہے. صدر ٹرمپ نے 2 روز قبل کرونا وائرس کو چینی وائرس قرار دیا تھا. کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ میں معیشت کا پہیہ جیم ہوا ہے اور اگر ہم اوورال دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کے نقصان کا سامنا ہے, تو وہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ بھی تباہی کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں. دوسری جانب اگر ہم روزانہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں جو روزانہ اجرت پر کام کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی بھی اس وقت حالت جو ہے وہ کافی سنگین ہے. فاقہ کشی اور بے گھری کے خطرات نے انہیں گھیر رکھا ہے. عام شہری حکومت سے ہنگامی پیکیج کی توقع کر رہے ہیں. ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں کون سی ریاستوں نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اور عام شہریوں کے تحفظ کے لیے کیا بات کی جا رہی ہے. بہت شکریہ ندیم یعقوب ہمیں جوائن کرنے کا. کیا سچویشن ہے اس وقت امریکہ کی مختلف ریاستوں میں؟ دیکھیں 2 سطحوں پر جو ہے وہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایک تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے سر ٹرمپ, انہوں نے کچھ اقدامات کا اعلان کیا ہے اور جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ ابھی ایک بل جو ہے اسٹیمولس پیکج کے لیے وہ کانگریس میں ہے اور وہ کانگریس کی منظوری جیسے ہی ہوگی تو تقریباً $10 کھرب سے زیادہ کا وہ پیکج ہے جس سے بیسیکلی معیشت کو سہارا دینے کی کوشش ہے. اس کے علاوہ سر ٹرمپ نے آج بھی جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے. جیسے ایک تو یہ انہوں نے بتایا کہ جو ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہے وہ اب زیادہ اویلیبل ہے, جو اسٹیٹس ہیں ریاستیں ہیں ان کے پاس بھی ہے, ہاسپٹلس کے پاس ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ کہ کچھ جو نیوی ان کے ہاسپٹلس ہیں وہ کچھ ریاستوں میں بھیجے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر جو ایسی ریاستیں جہاں پر زیادہ کیسز ہیں, جہاں پر جن کو زیادہ نمٹنا پڑ رہا ہے, وہاں پر وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اس کے علاوہ جو ریاستیں ہیں وہ اپنے طور پر گورنرز جو ہیں وہ کچھ اقدامات کر رہے ہیں. کچھ ریاستیں ہیں انہوں نے کچھ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. فار ایگزامپل سب سے زیادہ جو کیسز جن ریاستوں میں آئے, جیسے سب سے پہلے واشنگٹن اسٹیٹ تھی, نیو یارک ہے, کیلیفورنیا ہے, لوزیانا ہے, کولوراڈو اور اوہایو, یہ وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے, اور اس کے علاوہ بھی تقریباً جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 50 جو ریاستیں ہیں امریکہ کے ان سب میں کیسز جو ہیں وہ اب آ چکے ہیں. تو یہ وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں. جیسے ایک تو یہ کہ انہوں نے سکولز بند ہے, جیسے کہ بہت سے سکول سارے تقریباً بند ہے. جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ جیسا کہ آپ نے کہا جزوی طور پر کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو ریسٹورانٹس وغیرہ ہیں, گیدرنگز جو ہیں, کانسرٹس ہیں, فیسٹیولز ہیں, وہ ساری انہوں نے پوسٹ پون کر دی ہیں. گیدرنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے نہ ہوں. اس کے علاوہ ریسٹورانٹس میں اگر جائیں تو وہ ٹیک اوے ڈیلیوری لیں, وہاں پر آپ کھانا
वहाँ पे बैठ के ना खाएं, तो वो भी इमरजेंसी के जो इक़दामात हैं उनके तहत उन्होंने उन पर पाबंदी लगा दी है। न्यूयॉर्क में फॉर एग्ज़ाम्पल जो बार्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे उन्होंने बंद कर दिए हैं। ब्रॉडवे जो है वो भी आम शहरियों के लिए कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही है, क्योंकि $1000 पर पर्सन शायद बात की जा रही थी, उस पर कोई अपडेट आपके पास? इस तरह की बिल्कुल बात है। जो मेन देखें ना, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे एयरलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री जिस पे हम बात कर चुके हैं, वो बहुत मुतासर हैं। उनके लिए जो फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं जो कि घरों में बैठे हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए भी तो इस तरह की कोशिश की जा रही है कि जो स्टिमुलस पैकेज हो उसमें सबको कोई रिलीफ मिले। आम आदमी जो है उसको कम से कम $1000। प्रेसिडेंट ट्रंप पहले से कह चुके हैं कि वो टैक्स में रिलीफ देना चाह रहे हैं। पेरोल जो कट्स हैं उनको वो इस्तिस्ना देना चाह रहे हैं कुछ महीनों तक। तो ये सारे मेजर्स हैं जो कि एक स्टिमुलस पैकेज का हिस्सा होंगे। सबसे ज़्यादा जैसे कि अभी मैं आ रहा था आज सुबह, तो जब हम नॉर्मली आते हैं वो वर्जीनिया से कम्यूट करके ड्राइव करके, तो आज ट्रैफिक नहीं थी। आपको साफ पता चल जाता है कि दुनिया जो है वो बदल गई है, शहर की जो ज़िंदगी है वो बदल गई है। लोग जो हैं वो बहुत कम हैं शहरों में, स्टोर्स में बहुत कम हैं, आप वैसे भी देख सकते हैं। अब मसला जो है जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा था वो ये है कि आम आदमी या स्टूडेंट्स जो हैं या फैमिलीज़ जो हैं वो घरों में बैठी हुई हैं और करने को कुछ नहीं। कुछ लोग घरों से काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो लेबर क्लास है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्लू कॉलर वर्कर हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि काम हो नहीं रहा, तो वो कैसे इस सिचुएशन में गुजारा करें। ये बहुत एक चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम आपका हमें ज्वाइन करने का और अपडेट करने का। अमेरिका और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ पे दफातर में टेलीवर्क देने की सहूलत मौजूद थी, उन्होंने ज़्यादातर अपने स्टाफ को दफातर ने घरों से काम करने का मशवरा दिया है और ज़्यादातर लोग इस वक्त घरों से काम कर रहे हैं। 90% स्टाफ वॉइस ऑफ अमेरिका का भी घरों से काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पे इस वक्त टेलीवर्क की फैसिलिटी कुछ बहुत ज़्यादा आम नहीं है या इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे किस तरह से इस वायरस से बचा जा सकता है जो कि हवा में और सरफेस पे कुछ घंटों के लिए रह सकता है, इस पे एक काफ़ी हद तक क्वेश्चन मार्क है और इसमें एहतियात ही सबसे बेहतरीन ज़रिया हो सकता है इस वायरस से बचने का। अमेरिका में जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका का हेड ऑफिस जो है उसको भी जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। 90% स्टाफ इस वक्त घर से काम कर रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की डायरेक्टर अमेंडा बेनेट ने अपने एक वीडियो पैगाम में क्या कहा, आइए सुनते हैं। I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. मेरा नाम अमेंडा बैनेट है और मैं वॉइस ऑफ अमेरिका की डायरेक्टर हूँ। मैं अपना ये पैगाम घर पर रिकॉर्ड करा रही हूँ क्योंकि यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका का तकरीबन तमाम अमला अपने घरों से काम कर रहा है ताकि कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सके। मुझे अंदाजा है कि इस वायरस ने आप में से बहुत से लोगों को भी मुतासिर किया होगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगरचे हमारे मुलाजमीन की सेहत और उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारा बुनियादी हदफ है, हमें इस हकीकत का भी इदराक है कि इस मुश्किल वक्त में आप पहले से बढ़कर हक़ाइक़ पर मबनी और गैर जानिबदार मालूमात के हसूल के लिए VOA का रुख कर रहे हैं ताकि आप अपने मुतालिक दुरुस्त फैसले कर सकें। लिहाजा हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में जितना मुमकिन हो सके अपनी मामूल की नशरियात जारी रखें। लेकिन इसके बावजूद आपको अपने पसंदीदा शोज में बास तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं और हो सकता है कि इनमें से बाज नशर ही ना हो सके। अगर ऐसा हुआ तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आगाह किया जा सके कि आप अपने पसंद के प्रोग्राम्स कहां देख सकते हैं। मेरी दुआ है कि किस्मत आप पर मेहरबान रहे और आप सेहतमंद रहें। So I'd like to wish you all good luck and good health and thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you. पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। जिस तरह की सिचुएशन पनागुज़ीन कैंपों में है उस पर हमने कल भी नज़र डाली, जो ईरान से अफ़गान मुहाजिरीन वापस अफ़गानिस्तान आ रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो रोहिंग्या पनागुज़ीन जो कि इस वक्त बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में 10 लाख की तादाद में मौजूद हैं, जिनके पास ना तो इंटरनेट है और ना ही मालूमात तक रसाई है कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। मुकामी हुक्काम रोहिंग्या पनागुज़ीनों को इस बात से आगाह करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगरचे दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, लेकिन कॉक्सिस बाजार के रोहिंग्या कैंप में जिंदगी कुछ हस्बे मामूल है। कैंप में मुकीम तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या अफराद के लिए मालूमात का बेहतरीन जरिया कहीं सुनी बातें हैं और कोरोना वायरस के फैलने की खबर आहिस्ता आहिस्ता कैंप के रिहायशियों में फैल रही है। मैं वायरस का नाम भूल गया हूँ। मैंने सुना है कि ये वायरस मुख्तलिफ ममालिक में फैल चुका है और लोग मर रहे हैं, लिहाजा हमें अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए।
बाज़ाब्ता ऐलान या मुनासिब मालूमात मुहैया ना होने के सबब यहाँ लोग बेबुनियाद अंदाजे कायम किए बैठे हैं। मैंने सुना है कि अगर किसी को वायरस हो जाता है तो उसके हाथ पांव माजूर हो जाएंगे, और अगर किसी के मुंह में मुतासरा थूक का कतरा चला जाए तो मुतासरा शख्स कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। मकामी माहिरीन सेहत का कहना है कि रिहायशियों के कैंप से बाहर निकलने या दाखिले के काबिल ना होने का मतलब ये है कि दर हकीकत यहाँ लोग काफ़ी अरसे से क्वारंटीन हैं। हुकाम कैंप में आने वालों पर खड़ी नज़र रख रहे हैं। उधर भी तो जाना बेखबर होने से बाज़ औक़ात रोहिंग्या कैंप के अंदर गलत अफवाहें फैल सकती हैं। हम कैंप में कुछ तालीम याफ्ता रोहिंग्या के जरिए शाऊर उजागर कर रहे हैं। हमारे पास अभी तक कोई मकामी तस्दीक शुदा केस मौजूद नहीं है। कोरोना वायरस के केसेस दूसरे ममालिक से आते हैं, लिहाजा अभी किसी रोहिंग्या का कोरोना वायरस से मुतासिर होने का कोई इम्कान नहीं है। हुकाम इमदादी कारकुनों से भी इस वायरस से बचाव के लिए चौकस रहने की दरख्वास्त कर रहे हैं। हमने गैर मुल्की इमदादी कारकुनों को हिदायत की है कि वो अपनी सेहत की सूरत हाल का जायजा खुद लें, बैरून मुल्क से कोई नया कारकुन न लाएं और रोहिंग्या में मालूमाती प्रोग्राम्स जारी रखें। मुअज़्ज़िम हुसैन शकील के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। 80% से ज़ायद केसेस मामूली दर्जे के होते हैं। नौजवान और सेहतमंद लोगों को इसका खतरा कम है। उम्र रसीदा और सेहत के संजीदा मसाइल से मुतासरा अफराद के इससे हलाक होने का खतरा ज्यादा है। अगर आपको खांसी, बुखार और मुश्किल से सांस आने का मसला है तो अपने डॉक्टर से फौरी राब्ता करें और दूसरों से कम से कम 1 मीटर फासले पर रहें। पेशावर का कारखानों बाजार तो पाकिस्तान भर में मशहूर है, लेकिन वहाँ एक ऐसी मार्केट भी है जहाँ अमरीकी अफवाज के इस्तेमाल की अशिया मिलती थी। अब जबकि अमरीका अफगानिस्तान से निकल रहा है तो इस मार्केट का फ्यूचर क्या होगा और इस वक्त हालात क्या हैं, पेशावर से उमर फारूक हमें बता रहे हैं। पेशावर का कारखानों बाजार तो पाकिस्तान भर में मशहूर है। कारखानों बाजार में वाक़या ये मार्केट अमेरिकन या नेटो मार्केट के नाम से जानी जाती है। यहाँ 9/11 के बाद अफगानिस्तान में बरसरे बेकार अमेरिकन या नेटो अफवाज के लिए भेजा गया सामान मिलता था। इस इम्पोर्टेड माल को खरीदने के लिए मुल्क भर से ग्राहक आते थे। हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें हैं, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें यहाँ से मिलती हैं इम्पोर्टेड में, तो वो चीज़ें लेके जाते हैं जो यूनिक सी होती हैं। मसला ये है कि अब कुछ हालात भी इस तरह के हुए हैं तो चीज़ें काफ़ी मिल रही हैं और काफ़ी नहीं भी मिल रही हैं। आज यहाँ मिलने वाला ज्यादातर माल मेड इन चाइना है, जिसे देखकर ग्राहक मायूस हो जाते हैं। मगर आजकल वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से मिल जाती है। किसी के पास अगर पुरानी चीज़ पड़ी हो तो मिल जाती है, मगर ऐसे कोई सारी आजकल चाइनीज़ माल इधर पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की अफवाज के ज़र इस्तेमाल अशिया इस मार्केट तक कैसे पहुँचते हैं, इस बारे में कोई भी बात करने पर राज़ी नहीं। लेकिन दुकानदार कहते हैं कि बॉर्डर पर आज़ादाना आमदोरफ्त की वजह से ये माल अफगानिस्तान से पेशावर पहुँचाना कोई मुश्किल काम ना था। इस मार्केट में आला मयार की दूरबीन, खंजर, बूट्स, जैकेट्स और दस्ताने वगैरह आम मिलते थे। मगर मार्केट की इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत की तरफ से सरहद पर बाड़ लगाने और तुरखम बॉर्डर पर चेकिंग सख्त करने के बाद अब स्मगल शुदा माल यहाँ नहीं आता। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में भी गरीब लोग बस रहे हैं, पाकिस्तान का हालात भी आपके सामने हैं, तो अगर ये रोज़गार ये वो कर रहे हैं तो ये इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि ये या दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये अपनी पेट भरने के लिए कुछ 2 पैसे कमाने की वजह से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐब है नहीं। दिलावर खान अफरीदी कहते हैं कि इस मार्केट में नेटो का साजो सामान बेचने वाले तखरीबकार या सहूलतकार नहीं थे, बल्कि गुर्बत की वजह से इस माल की तिजारत करते थे ताकि अपने घर वालों का पेट पाल सके। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। अमेरिका जैसे अमीर मुआशरों के बारे में कम तरक्की याफ्ता ममालिक में ये सोच आम है कि शायद यहाँ इस्तेमाल शुदा तमाम अशिया या तो कूड़े में फेंक दी जाती हैं या तरक्की पजीर ममालिक के अवाम को भेज दी जाती हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो या तो ज़रूरतन या शौकिया पुरानी और इस्तेमाल शुदा अशिया इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अमरीकियों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए थ्रिफ्ट स्टोर्स का अमेरिका में एक पूरा बिजनेस मौजूद है। अमूमन लोग यहाँ क्या ख़रीदने आते हैं और ये स्टोर्स कैसे काम करते हैं, जानते हैं सादिया ज़ेब रांझा की रिपोर्ट में। ये रियासत वर्जीनिया में वाक़ एक थ्रिफ्ट स्टोर है। यहाँ दाखिल होने पर आपको अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ मौजूद ज़्यादातर अशिया इस्तेमाल शुदा हैं।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कपड़े, जूते, किताबें, डेकोरेशन पीसेस और फर्नीचर वगैरह यहाँ कैसे और कहाँ से पहुँचता है। Basically, our store runs through donations. बुनियादी तौर पर ये स्टोर अतियात से चलता है। इस इलाके के लोग बहुत अच्छी हालत में चीजें अतिया करते हैं। ये हमारा ड्रॉप पॉइंट है। यहाँ से ये सब माल इस जगह लाकर छांटा जाता है, उन पर कीमतें लगाई जाती हैं और फिर फ्लोर पर पहुँचा दिया जाता है। यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी से मुताल्लिक तकरीबन सभी कुछ दस्तयाब है, लेकिन सबसे ज्यादा कपड़े नजर आते हैं, क्योंकि ये कपड़े ही हैं जो सबसे ज्यादा अतिया किए जाते हैं। इतने बड़े स्टोर को मैनेज करने में चैलेंजेस भी आते हैं। बतौर एक मैनेजर, ग्राहकों की पसंद नापसंद के मुताबिक चीजों की फराहमी सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये स्टोर एहतियात से चलता है और चीजों के इंतखाब की ऑप्शन हमारे पास नहीं होती। स्टोर मैनेजर के मुताबिक इस स्टोर में रोजाना की बुनियाद पर 25,000 आइटम छांटी होकर बेचने के लिए आते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर डोनेशंस की तादाद इससे भी ज्यादा है। इससे सिर्फ यहाँ आकर खरीदारी करने वाले ही फायदा नहीं उठाते, बल्कि खुद अतिये में दी गई अशिया से चलने वाला ये स्टोर स्पेशल ओलंपिक्स वर्जीनिया को डोनेशन देता है। जो भी अतियात यहाँ आते हैं, हम उनके वजन के हिसाब से मुतय्यन की गई रकम फौरी तौर पर स्पेशल ओलंपिक्स वर्जीनिया को अतिया कर देते हैं। फिर जब ये माल बिकता है तो हम उससे स्टोर में काम करने वाले 100 से ज्यादा वर्कर्स को तनख्वाहें देते हैं। यूँ ये सारा निजाम चलता है। ये सब माल 2 हफ्ते तक स्टोर में रहता है और जो माल नहीं बिकता इसे मुख्तलिफ मुल्कों को भेजने के लिए तैयार किया जाता है। यही वो माल है जो पाकिस्तान में लंडे बाजार में बिकता है। पाकिस्तान में तो अक्सर लोग इस बात को छुपाते ही हैं कि उन्होंने कभी लंडे बाजार का चक्कर लगाया है या कुछ खरीदा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत से अमरीकी भी ये बात छुपाना चाहते हैं। यहाँ भी हमारी इंतहाई कोशिश के बावजूद कोई भी कस्टमर कैमरे के सामने आने पर तैयार नहीं हुआ। ताहम ऑफ कैमरा इनमें से चंद कस्टमर्स का कहना था कि वो ज्यादातर शॉपिंग यहीं से करते हैं। यहाँ साबिक सदर बराक ओबामा की बेटी मालिया भी अपने दोस्तों के साथ आ चुकी हैं और उन्होंने यहाँ से शॉपिंग भी की, और वो इस बात पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी कि उन्होंने इस्तेमाल शुदा चीजें अपने लिए खरीदी हैं, बल्कि वो चीजों के दोबारा इस्तेमाल को माहौल दोस्त कहती हैं और दूसरों को भी ऐसा करने का मशवरा देती हैं। माजी में यहाँ अमेरिका में भी लोग अपने घर में पहने हुए कपड़ों को मुतादिद बार इस्तेमाल करते थे, कभी बच्चों के कपड़े बनाकर तो कभी तकियों और रज़ाइयों के गिलाफों में भरकर। लेकिन 19वीं सदी में सनती इनकलाब के बाद जब कीमतें कम हुई और लोगों की कुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ तो ज़या भी बढ़ा। इसी को रोकने के लिए ऐसे स्टोर्स और दुकानों का आगाज़ हुआ, लेकिन ज़या के साथ साथ ये स्टोर्स ऐसे लोगों की मदद का भी ज़रिया हैं जिनकी जेब महंगे और बड़े स्टोर्स की मुतामिल नहीं हो सकती। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फॉल्स चर्च, वर्जीनिया। भारत में ख़वातीन की औसत शरह ख़वानगी तकरीबन 65% है, लेकिन एक ऐसा ज़िला भी है जहां ख़वातीन की ख़वानगी की शरह औसत से निसफ है। लड़कियों के एक ग्रुप ने मुश्किलात का सामना करने के बावजूद कॉलेज में दाखिला लिया और वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक मुहिम चला रही हैं कि मज़ीद लड़कियाँ स्कूल जाएँ। लिए चलते हैं आपको शुमाली भारत के ज़िले नू के इस गाँव में। ये लड़कियां हर इतवार को मुसलमान अक्सरियती ज़िले नू में पड़ोसियों और दोस्तों से बात करने के लिए एक मिशन के लिए जमा होती हैं कि क्यों उनकी बेटियां स्कूल छोड़ रही हैं, और वजूहात हमेशा एक जैसी होती हैं। मम्मी अकेली थी, काम करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए छोटे बहन भाई थे तो सबसे बड़ी मैं ही थी, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी और ऐसे कहीं और स्कूल भी नहीं था इधर। नौजवान लड़कियों का ये ग्रुप वसीमा को मशवरा देता है कि वो अपनी तालीम दोबारा शुरू कर सकती हैं और अपनी माँ को छोटी बेटी को स्कूल भेजने पर राजी कर सकती हैं। वो उनके इन खदशात को दूर करने की कोशिश करती हैं कि तालीम याफ्ता लड़कियां हमेशा तालीम याफ्ता मर्दों से ही शादी करेंगी, जो कि ज्यादा बड़े जहेज का मुतालबा करते हैं। ये कम आमदनी वाले घरानों के लिए एक चैलेंज है। तारीख की मजमून की स्टूडेंट अरस्तून ने बताया कि उनकी तालीम ने उन्हें अपने पाँव पर खड़े होने का एतमाद दिलाया है। मैं शादी वहाँ करूँगी जहाँ पे ये कहेगा ना कोई हमें सिर्फ लड़की चाहिए, बस। मैं ऐसे किसी भी चाहे कितने भी बड़ा घर का क्यों ना हो, कोई मना कर दूंगी साफ, ना तो दहेज लेना ना दहेज देना। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन, जो इन देहातों में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की मुहिम की सरबराही कर रही है, उम्मीद करती है कि कॉलेज तक पहुँचने वाली ये चंद मकामी लड़कियाँ बिदरशाही माशरे में तब्दीली का बाइस बन सकती हैं। यहाँ औरतों के साथ अन्य प्रकार के जुल्म बहुत सारे होते हैं, तो वो उनकी आवाज़ कोई बाहर का व्यक्ति बने, उसकी बजाय ज़रूरत है कि उन औरतों की आवाज़ यहाँ की बेटियाँ ही बने। यही वजह है कि नर्सिंग की तालबा रिजवाना खान ने अपनी मुहिम अपने घर से शुरू की है।
وہ اپنے خاندان پر زور دیتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں. وہ ان خواتین کو بتاتی ہیں کہ تعلیم یافتہ لڑکیاں ان دیہاتوں کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہیں جہاں خواتین مرد وکیلوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتی، مرد اساتذہ سے پڑھ نہیں سکتی یا مرد ڈاکٹروں سے علاج نہیں کرا سکتی. لڑکی کو تو پڑھانا نہیں چاہتے، لیکن انہیں اپنے گھر میں کوئی مہیلا بیمار ہو تو اس کے لیے انہیں لیڈیز ڈاکٹر چاہیے. تو پاپا کا اسی سوچ میں تھا کہ میری لڑکی بھی ڈاکٹر بنے. شہناز بانو ایک مقامی اسکول میں پڑھانا چاہتی ہیں. پڑھانے سے کیا ہے، جب آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ گے تبھی تو ان کے لیے ایک مہیلا ٹیچر ملے گی. جب آپ بیٹیوں کو نہیں پڑھائیں گے تو کیسے مہیلا ٹیچر ملے گی. کچھ لوگوں کے لیے بڑا چیلنج ذہنیت کو تبدیل کرنا ہے. وہ عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے جسٹ بیکاز میں وہ گھر کے ورکر ہے اور ایک بچہ پیدا کرنے کے ایک سادھن ہے. تو ہم یہ مینٹلٹی دور کرنی ہے کہ جب گاڈ نے نیچر نے ہمیں ایکویلٹی دی ہے اور ہمارے فنڈامنٹلس رائٹ میں لڑکا اور لڑکی سمان ہے، تو یہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے جو ان کو ڈسکریمنیٹ کرے گی. سیکس کے بیس پہ، جینڈر کے بیس پہ جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ دوسروں سے متاثر ہیں. یہ ماں اپنی 3 بیٹیوں کو تعلیم دلوانا چاہتی ہیں. دن بھر بھینس لسانی کرتی ہے، جھاڑو برتن روٹی سبزی کپڑا دھونا ہرو لانو جنگل سے، یہ دن بھر نہیں سرتا. تو پڑھتی تو دن بھر اتنا کام نہ کرنا پڑتا. مزید لڑکیوں کو اسکول تک لانے کی لڑائی سست تو ہے لیکن یہ شروع ضرور ہو سکتی ہے. انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. ایک وقت تھا جب شام کا شہر ریکا داعش کا مضبوط گھر سمجھا جاتا تھا. وہاں عسکریت پسند گروہ دولت اسلامیہ نے اپنی خود ساختہ خلافت کا دعویٰ کر رکھا تھا. آج اسی علاقے میں خواتین اپنی زندگیوں کو معمول پر لانے کی تگدوں میں مصروف ہیں. امریکہ کی حمایت یافتہ کرد قیادت والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے اکتوبر 2017 سے اس علاقے میں داعش کا خاتمہ کیا تھا. اس کے بعد سے اس شہر کے متعدد اسکولوں سے درجنوں طالبات باسکٹ بال کے مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. اس تبدیلی کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ لڑکیاں شام کے شمال مشرقی شہر راکا کے مختلف اسکول سے تعلق رکھتی ہیں. وہ ایسے کھیل میں حصہ لینے جمع ہوئی ہیں جو داعش کے نزدیک قابل سزا جرم تھا. اس گروپ کی شکست کے بعد یہ طالبات صحیح معنوں میں ایک بار پھر اپنے لڑک پن سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. اس مقابلے میں رقہ کے 10 ہائی اسکولز کی 10 ٹیمز حصہ لے رہی ہیں. مقامی عہدیداروں کو امید ہے کہ اس سے وہ خواتین بھی سماجی سطح پر سرگرم ہوں گی جو آج بھی داعش کے خواتین سے متعلق قدامت پسندانہ نظریات کے اثرات سے نبرد آزما ہیں. رقہ کے علاقے کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے. ہم باسکٹ بال کے ذریعے خواتین کی کھیلوں میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یوتھ اینڈ سپورٹس کمیٹی ساکر اور تیراکی جیسے دیگر کھیلوں میں بھی خواتین کی حوصلہ افزائی کرے اور ان کھیلوں کے احیاء کو یقینی بنائے. داعش نے جب 2014 میں رقہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو وہاں کی آبادی اور خاص طور پر خواتین پر سخت پابندیاں عائد کی گئیں. انہوں نے لباس سے متعلق سخت ہدایات جاری کی اور غیر مسلم خواتین حتیٰ کہ 9 برس کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی اور انہیں داعش کے جنگجوؤں سے شادی پر مجبور کیا. ایسے میں خواتین کے کھیلوں میں حصہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. 3 ٹیمز کو میڈل اور ٹرافیز تقسیم کی گئیں. داعش کے خاتمے کے لیے لڑی جانے والی تباہ کن جنگ کے اثرات کے باوجود یہ نوجوان ایتھلیٹس آئندہ برس مزید تربیت اور جذبے کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے پرعزم ہیں. ہم یہاں مقابلے میں شرکت کے لیے آئے ہیں. ہم تیسرے نمبر پر آئے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے. دوسری ٹیم ہم سے بہتر کھیلی ہے. امید ہے آئندہ برس ہم اول نمبر پر آئیں گی. راکا شہر میں اب بھی داعش کے قبضے اور ان کے خاتمے کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں. کھیلوں کی کئی عمارات تباہ کر دی گئیں. اطلاعات کے مطابق داعش نے راکا کے مرکزی اسٹیڈیم کو مغربی دنیا پر حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کیا. نسان احمدو کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کورونا وائرس سے آپ کیا احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں ہم سے بھی شیئر کیجیے گا facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.